Hello everyone, welcome back to the Sikshavriddhi. This is part 2 of the business study chapter 1 Nature and Significance of the Management. I have already uploaded the part 1 of the chapter 1. If you haven't watched part 1, the link is given in the descriptions. In part 1, we have discussed the meaning of management, its concepts, characteristics, features, and the importance. So, that part is very important for the understanding point of view and the basic questions. In the today's video, we will go one step ahead and discuss the nature of the management, level of management, functions of the management, and the coordinations, which are very important from the exam point of view and are frequently asked in the board examinations. So, let's continue our learning journey and get started. So, the first topic of today's video is the nature of the management. अभी तक हमने पढ़ा था characteristics, features and the significance of the management. But as the topic name is nature and significance of the management, the importance of management, significance means हमारा जो भी management का importance क्या है. तो importance of management we have already completed. Now we will go through by the nature of the management कि nature क्या है management का. So some authors regard the management as a science because there are well tested and experimented principles of the management. Some authors describe the management as an art because more practice is required in the management, and some authors consider that management is going toward the path of the professions. The first line is the some author regard the management as a science. It means that in some author regard the management, regard means describe the management as a science. Q, the reason behind why they refer the management as a science, because of the well tested and the experimented principles of the management. ओके ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज ऑफ द वेल टेस्टेड एंड द एक्सपेरिमेंटेड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट द ऑथर रिगार्ड्स द मैनेजमेंट एज अ साइंस and the some author describe the management as an art because more practice is required in the management. Again the point is more practice is required in the management. This will come like in an MCQ in the questions. And the some author considered that management is going toward the path of the professions. They are not saying that an author regard करे management को as a professions, but going toward the path of the professions. There is a difference between the regarding the management as a science and the regarding them as a going towards the path of the professions. It means it is not, the answer is given here that it is not a professions but as it is going toward the path of the professions at. Okay, done here. To conclude whether the management is a science, art or professions, we must understand the features and the meaning of the science, art and professions and compare them with management meaning and features. Acha, randomly we can't say that in management is a science, art or profession. We must have to compare the definitions of the science, art and professions, their features with the definitions of the management and their features. Okay. So we say that in management has a dual and the evolving natures. Different author describe its science, art and also as a professions because it has a characteristics of all three. ठीक है, इट्स अ डुअल नेचर. लाइक हमने बोल सकते कि मैनेजमेंट का एक फिक्स्ड नेचर है, इट हैज़ अ डुअल और इवॉल्विंग नेचर्स. एंड डिफरेंट ऑथर डिस्क्राइब इट एज अ साइंस, आर्ट एंड ऑल्सो एज अ प्रोफेशंस. वाई? बिकॉज इट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल थ्री. Okay, done. Acha, to conclude what we have to do, first we have to understand the meaning of management and their features. Okay, and then and also the meaning of the science, arts and the professions, and then compare both of them. Okay, chalo. So the first point comes the management as a science. Management as a science. The science can be defined as a systematic, the very important point that in systematic and the organized body. The questions will come in a MCQs or case studies, किसी में भी आ सकता है. So you have to be the keyword. आपको अगर लिखने को दिया, अगर ये टॉपिक पर क्वेश्चंस आ गया कि या कोई भी केस स्टडीज आ गया कि मैनेजमेंट एज अ, लेट मी गिव मी समटाइम्स, हाँ, कि लाइक एक्सप्लेन द मैनेजमेंट एज अ साइंस, और कोई भी केस स्टडीज़ आ गया कि साइंस, मैनेजमेंट एज अ साइंस के बने. सो आपका क्या पॉइंट होना चाहिए ये
सो पहला बता, ये जो कीवर्ड्स है यू मस्ट राइट, अदरवाइज यू वोंट गेट अ फुल मार्क्स. दैट इन साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज. ये लाइन, ये पूरा ये फ्रेज आपको लिख के आना पड़ेगा, अदरवाइज यू वोंट गेट अ फुल मार्क्स. दैट इन साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक मीन्स एक सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग्स, फैक्ट्स एंड द इवेंट्स. मीन्स जो भी सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है वो किस पर बेस्ड है, आपका लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग है, जो भी फाइंडिंग्स इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व किया गया है. एंड फैक्ट्स एंड इवेंट्स मीन्स फाइंडिंग फैक्ट्स एंड इवेंट्स को लॉजिकली ऑब्जर्व किया गया, एंड ऑन दैट बेसिस in that we define the systematic and organized body of the knowledge. And management is considered as, or we can write that management is considered as a science because it has a systematic body of knowledge. Okay, chalo. The science comprises of exact principle which can be verified and it can establish the causes and the effect relations. तो यहाँ पर साइंस में क्या बोल रहे हैं कि साइंस कंप्राइज क्या कर रहा है, एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स मीन्स जो प्रिंसिपल्स हमेशा से चलते आ रहे, देयर इज नो चेंजेस, विच कैन बी वेरीफाइड एंड उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं हम, एंड इट कैन स्टैब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एंड दैट प्रिंसिपल स्टैब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, लाइक ये करने से ये होगा, इसका इफेक्ट इम्पैक्ट ये होगा. ओके, सो यहाँ पर एक तो क्लियर डेफिनेशंस दिया है कि मैं साइंस का, कि साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ द नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन द लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग्स, फैक्ट्स एंड द इवेंट्स. ये याद रखना है कि फाइंडिंग्स भी लिख के आना है, फैक्ट्स भी लिख के आना है, एंड इवेंट्स भी लिख के आना है. FFE और यू कैन से दैट इन EFF. Okay, एंड साइंस में क्या इंक्लूड होता है, दैट इन साइंस वी ऑलवेज लर्न दैट इन साइंस में एक एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स रहता है. तो साइंस कंप्राइजेस ऑफ द एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स विच कैन बी वेरीफाइड. आप ऐसा नहीं रैंडमली कोई प्रिंसिपल्स नहीं, एंड दैट यू कैन से दैट इन दिस प्रिंसिपल्स इज अ साइंस, एंड दैट प्रिंसिपल कैन ईजिली बी वेरीफाइड. ओके, and it can establish the cause and effect relationship. It means those principles that can be verified and establish the cause and effect relationships are science. Okay, chalo. So to decide whether management is a science, we compare the features of science with management. So इतना देर तक science का definitions पढ़ा, and now to compare whether the science management is a science. Also what we have to do, we have to compare the जो भी features है साइंस के, उसको मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ. ओके, सो द फर्स्ट वन इज कम द दैट डेफिनेशंस है, जैसे तो भूलने का तो चांस ही नहीं एकदम. सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज. तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इन साइंस, ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल विच इज़ यूज टू अक्वायर द नॉलेज ऑफ द साइंस. आपके पास एक फिक्स्ड एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल रहता है जहाँ से आप नॉलेज गेन कर सकते हो. लाइक साइंस एंड मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल. एंड मैनेजमेंट के लिए भी आपको स्टडी मटेरियल प्रॉपरली मिल सकता है, सिस्टमैटिक. सो द फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, और वी कैन से दैट इन साइंस हैज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ द knowledge, that means the principles, concepts and the theories, and the management principles are tested and experimented. These principles help in predicting the results when applied properly. Wait a minute, give me some time. So that in what we have where we are, that in science organized, that in science has a well organized and a systematic study material. Okay, and the management also has a organized principles, concepts and the theories. Okay, like subject like the planning, organizing, staffing, directing and controlling are properly documented. So the what we say that in the first features of the science is present in the management. I hope you are clear here till here. Again, I am repeating the question, same concepts, that in science can be defined as a systematic and organized body of knowledge which are based on logically observed findings, facts and the events. And the science comprises of the exact principles which can be two conditions, which can be verified भी कर सकते हैं, and that can establish the cause and effect relationship. Understood? Now
To decide whether the management is a science, we compare the features of the science with the management. Now the main features of the science, यहाँ पर हम लोग मैनेजमेंट के फीचर्स नहीं पढ़ रहे, हम लोग यहाँ पर साइंस के फीचर्स पढ़ रहे. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द साइंस? फर्स्ट फीचर इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. यू कैन राइट इन द एग्जाम दैट इन साइंस हैज़ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल. And then the second bullet point, you also write that in management also has organized principles, concepts, and the theories. Subjects like the planning, organizing, staffing, directing, and controlling are properly documented. So the first features of the science is present in the management. Here, एक valid, एक short and crisp answer you are able to write in the exams. The second is the principles are based on the experimentations. Okay. That in scientific principles are developed through observations. जो भी आपका scientific principles को हम लोग develop करते हैं वो किससे? observations. again यहाँ पर था कि logical observations के base पर रहता है. so we are developed through the observations and then tested through the repeated experiment. आपने ऑब्जर्व किया किसी चीज़ को, किसी भी प्रिंसिपल्स को, एंड देन इसको टेस्ट किया रिपीटेड एक्सपेरिमेंट में. ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार इसको एक्सपेरिमेंट किया, एक बार यूज़ किया एंड यू आर जस्ट मेकिंग द जजमेंट और द स्टेटमेंट दैट नो दिस इज़ द गुड प्रिंसिपल्स. ने वो रिपीटेडली यूज़ किया गया, उसको एक्सपेरिमेंट किया गया डिफरेंट सिचुएशंस में. एक्सपेरिमेंट मीन्स कि उसको रिपीटेडली डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ किया गया, सिनेरियो में यूज़ किया गया, एंड देन उस प्रिंसिपल्स को वेरीफाइड करके ही प्रॉपरली बोला गया दैट इट इज़ अ साइंटिफिक प्रिंसिपल. The management principles are also developed through observations and experiments. And यहाँ तक अगर हम पढ़े सो हम क्या समझ रहे हैं कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है उसको डेवलप्ड किया गया कैसे? ऑब्जर्वेशन से एंड देन टेस्टेड थ्रू द रिपीटेड एक्सपेरिमेंट. एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशंस एंड द एक्सपेरिमेंट. ओके. तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशंस एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट. एक लाइन में आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट एंड द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू द एक्सपेरिमेंट एंड द ऑब्जर्वेशंस. ओके. बट मैनेजमेंट डील विद द ह्यूमन बींग्स. ओके. एंड ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली. यू कैन से दैट एन अभी ये इंसान ऐसा सोच सकता है या ये इंसान इस प्रिंसिपल्स को लेके इसका ये थिंकिंग हो सकता है. सो बट सिंस द मैनेजमेंट डील विद द ह्यूमन बींग्स एंड द ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड, दिस फीचर्स ऑफ द साइंस इज पार्शियली प्रेजेंट. सो मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एन इनएग्जैक्ट साइंस. इट मीन्स दैट इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ प्योर साइंस, इनएग्जैक्ट साइंस. ओके. सो जो सेकेंड फीचर्स है वो क्या है? पार्शली प्रेजेंट है कि हाँ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो भी है उसको वो ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट के थ्रू डेवलप किया गया, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को भी वैसे ही डेवलप किया. बट मैनेजमेंट डील विथ किससे डील? सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये वाला वर्ड मैनेजमेंट किससे डील करता है? ह्यूमन बींग से एंड ह्यूमन बिहेवियर से. एंड द ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी, दैट्स वाई ये ह्यूमन बीइंग से डील करता है. सो दैट्स वाई वी कांट से दैट इन ह्यूमन बिहेवियर और ये एक्यूरेटली ऐसा प्रेडिक्ट किया जा सकता है. दैट्स नॉट पॉसिबल. So these features of the science is partially present. So management can be called an inexact science. Remember this point, inexact science, you have to write it in the exams. And the universal validity. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव द यूनिवर्सल्स एप्लीकेशंस एंड वैलिडिटी. जो भी आपका साइंटिफिक प्रिंसिपल्स रहते हैं आप उसको यूनिवर्सली किसी भी सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हो. द रिजल्ट्स विल गेट द सेम, यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एग्जैक्ट लाइक द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, सो देयर एप्लीकेशंस एंड यूज इज नॉट यूनिवर्सल्स. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो एग्जैक्ट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की तरह नहीं है. So their applications and use is not universals. आप उसको like you can't apply the management principles in all the scenarios, in all the situations, all the organizations in the same way in which you have once applied. Okay. बट साइंटिफिक प्रिंसिपल के साथ आप वो कर सकते हैं. सो दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशंस. जो भी सिचुएशंस है, क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको मॉडिफाइड करके ही उसको अप्लाई करना है. सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग ना कि मैनेजमेंट क्या होता है? डायनेमिक होता है कि एंड इट शुड बी फ्लेक्सिबल टू अडॉप्ट द चेंजेस इन द करेंट एनवायरनमेंट. ओके. यही पॉइंट की वजह से सो दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशंस. सो दिस फीचर्स ऑफ द साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट. सो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट जो फीचर्स है वो completely present है, but the second features is not completely present. Okay, it is a partially present, and the third it is not present. Okay.
ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ साइंस विथ मैनेजमेंट, कंक्लूजन्स में क्या है, वी फाइंड दैट वन फीचर्स ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट whether two are not present, or we can say that one are partially present. Okay, so management cannot be considered the pure or exact science, but we can call it an inexact or social science. कंक्लूजन्स में हम ये बोल सकते हैं कि आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे लिखते हैं दैट आउट ऑफ द थ्री फीचर्स ऑफ द साइंस, वन इज प्रेजेंट, one is partially present, and one is not present. Hence, management cannot be called a pure or exact science. Management is an inexact science, a social science. हम इसको pure science नहीं बोल सकते. So अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि whether the management is a pure science, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है तो आपको तो साइंस डिस्क्राइब करना है, ये वाला पोर्शंस, एंड ये बुलेट पॉइंट्स देके इसको, इसका कंटेंट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना. ओके, एंड कंक्लूजन यू मस्ट हैव टू राइट द कंक्लूजन्स कि वेदर इट इज़ अ साइंस और नॉट. तो कंक्लूजन्स में लिख सकते हैं कि आउट ऑफ द थ्री फीचर्स ऑफ द साइंस, वन इज प्रेजेंट, वन इज पार्शली प्रेजेंट, एंड वन इज नॉट प्रेजेंट. हेंस मैनेजमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड अ प्योर और एग्जैक्ट साइंस. मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस. ओके, इस तरीके से अगर आप केस स्टडीज़ भी आया या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस आए, सो यू विल गेट अ गुड मार्क्स. ओके, चलो. Or you can also write in a conclusions that a management is a science because it has a systematic knowledge, but since its principles lack universal validity and deal with human behavior, it is an inexact science or social science. आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो वो conclusions लिख सकते हो कि that and out of the three features, one is present and one is partially present, one is not present, hence it is not an exact or pure science, or we can say that it is an inexact or social science. और एक लास्ट में लाइन भी लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ साइंस बिकॉज इट हैज़ अ सिस्टमैटिक नॉलेज, बट सिंस इट्स प्रिंसिपल्स लाइक यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड डील विद ह्यूमन बिहेवियर, इट इज़ एन इनएग्जैक्ट सोशल साइंस. आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो. द नेक्स्ट कंसेप्ट है मैनेजमेंट एज एन आर्ट. So the next concept is the management as an art. So art can be defined as a systematic body of knowledge which require the skill, creativity and practice to get perfections. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आर्ट को कैसे बोल सकते हैं, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ द नॉलेज. आर्ट क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ द नॉलेज. दैट बॉडी ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड स्किल, जो भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ द, एंड दैट नॉलेज रिक्वायर्ड द स्किल, creativity and the practice. Three things is important. The first one is the skill, the second one is the creativity, and the third is the practice to get the perfections. And to decide whether the management is an art, we compare the features of the art with the management. Okay, the first features here, that is systematic body of the knowledge and the existence of the theoretical knowledge. जैसे हमने साइंस का डिस्क्रिप्शंस किया था वैसे ही आर्ट्स का करेंगे. अब कंटेंट देखते हैं इसमें डिफरेंट क्या है. ठीक है, सो यहाँ पर अगेन बोल सकते हैं कि आर्ट इज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट रिक्वायर द स्किल, क्रिएटिविटी एंड द कंटिन्यूस प्रैक्टिस टू अचीव द परफेक्शंस. आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना होगा टू परफेक्शंस अचीव में करना होगा. नाउ to see whether the management is an art, we compare the features of the art with the management. The first one is the systematic body of knowledge or the existence of the theoretical knowledge. So यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दैट एन एवरी आर्ट हैज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल. ओके, दैट इज़ अवेलेबल टू अक्वायर द थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ द आर्ट. लाइक कोई भी आर्ट के लिए एक सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल है. ठीक है, to acquire the theoretical knowledge of that. For example, various books on the different ragas are available in the music. Music के लिए बहुत सारे रागस के लिए different books है, फिर डांस पर various books है, पेंटिंग्स पर books है. Okay, so अभी तक क्या कि एवरी आर्ट हैज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल दैट इज़ अवेलेबल टू गेट दैट थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ दैट आर्ट. ओके, एंड एग्जाम्पल्स दैट इन बुक्स ऑन द म्यूजिक्स, डांस, पेंटिंग एट्सेट्रा. स्टडी मटेरियल सिमिलरली द मैनेजमेंट ऑल्सो हैज़ अ सिस्टमैटिक थ्योरीज, प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट. बुक्स अवेलेबल्स है, जर्नल्स अवेलेबल्स एंड कोर्सेज अवेलेबल्स है दैट जो कि हेल्प करता है इन अक्वायरिंग द मैनेजरियल नॉलेजेस. इन मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज़ अ सिस्टमैटिक and organized body of knowledge, or either we can say that, and similarly the management also has a systematic and organized body of knowledge that is available
available which can be helpful in acquiring the managerial studies. Okay, so these features of the art is present in the management also. Done. The second is the personalized applications. पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस क्या बोल रहा है कि इन द फील्ड ऑफ द आर्ट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज़ नॉट इनफ. आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि आर्ट के फील्ड में कि आपने थ्योरेटिकल नॉलेज गेन कर लिया तो वो इनफ है. लाइक आर्ट पेंटिंग में आपने सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज गेन कर लिया, सो दैट्स नॉट इनफ ना. या डांसिंग में, म्यूजिक में आपने सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज किया है लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, सो दैट्स नॉट इनफ. लाइक ऑल्सो वी कैन से दैट हमने पढ़ लिया लेकिन आंसर राइटिंग नहीं, प्रैक्टिस नहीं किया, सो वी आर नॉट एबल टू पुट आवर 100% एंड द प्रॉपर वे द आवर नॉलेज इन द एग्ज़ाम. ओके, जो आंसर शीट में उसमें हम प्रॉपरली अपना जो भी नॉलेज है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमने तो आंसर प्रैक्टिस नहीं किया है. तो वैसे ही दैट इन द फील्ड ऑफ द आर्ट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज़ नॉट इनफ. Every artist must have personal skill and creativity to apply that knowledge. For example, all musicians learn same ragas, but they apply these ragas according to their personal skill and creativity, which makes them different. In management also, all the managers learn same management theories and the principles, but their efficiencies depend on how well they use these principles under different situations by applying the personal skill and creativity. ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है दैट इन पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस में कि इन आर्ट थ्योरेटिकल नॉलेज अलोन इज़ नॉट इनफ. ईच आर्टिस्ट अप्लाइज द नॉलेज यूजिंग पर्सनल स्किल एंड द क्रिएटिविटी. एग्जाम्पल्स, ऑल म्यूजिशियंस लर्न द सेम रागस बट ईच परफॉर्म डिफरेंटली. Similarly, all managers learn the same management principles, but their efficiencies, जो भी management principles का उसका efficiencies किस पर depend करता है, personal skill पर, उस managers के judgment पर, creativity पर and experience पर. So these features of the art is also present in the management. Okay. Now the third and last one is the based on the practice and the creativity. The artist required the regular practice of art to become more fine and perfect. Without practice, artists lose their perfections. Art requires the creative practice. Artist must add his practice to the theoretical knowledge he has learned. Same way with experience, managers also improve their managerial skill and efficiencies. So these features of the management is also present in it. Like based on the sorry, I have mentioned that in personalized applications की जगह मैंने बोल दिया था continuous practice. यहाँ पर क्या है कि आपने पहले theoretical knowledge acquire किया है and then you must have your personal applications. How will you apply that knowledge? Okay, and हम किसी भी नॉलेज को किसी भी सिचुएशंस में कैसे अप्लाई करेंगे, वो हमारे पास वो स्किल कैसे आएगा, कंटिन्यूस प्रैक्टिस के थ्रू. ओके, सो यहाँ पर बोला है कि आर्ट इम्प्रूव ओनली थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस. आप कोई भी आर्ट प्रैक्टिस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कोई भी चीज़ है, सो वो इम्प्रूव कैसे होगा, रेगुलर प्रैक्टिस के थ्रू. Without practice, an artist cannot achieve the perfections. Art requires the creative applications of the knowledge. Similarly, managers improve their effectiveness through practical experiences, decision making, and the creative problem solving. These features of the art is present in the management. So अभी तक हमने 3 features पढ़ा and तीनों features are available in the management. The first one is the systematic body of the knowledge and the existence of the theoretical knowledge. Second one is the personalized applications and the third one is the based on the practice and the creativity. Okay, so conclusions point में हम लिख सकते हैं कि that and all features of the arts are present in the management, therefore management can be called an art. Okay, यहाँ पर conclusions दिया है. On comparing the features of the art with the management, we find all the features of the art are present in the management, so we can call the management as an art of getting the things done by the other. ठीक है, ये एक important point है. अगर आप able है right to remember the things, so it will be helpful in the exams to get some extra marks. Again, the final conclusions क्या है कि all the features of the arts are present in the management, therefore management can be called an art. And the golden line to remember आप कर सकते हो कि management is an art of getting things done through others by applying the personal skill, creativity and the practice. I hope कि आपको यहाँ तक का concepts एकदम clear हो. और एक conclusion point दिया है management both science and the art. That in management is both science as well as an art.
Like science, it has a systematic and well-organized body of knowledge, and like art, it requires the personal skill, creativity, and practice to apply such knowledge in the best possible way. Science and art are not in the contrast to each other. Both exist together in every functions of the management. यहाँ पर बोल रहा है कि साइंस एंड आर्ट एक दूसरे के अपोजिट में स्टैंड नहीं करते, बट एग्जिस्ट को एग्जिस्ट है टुगेदर इन एवरी फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट. लाइक मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं उन सब में वो एग्जिस्ट करते हैं टुगेदर. ओके, और ऑल्सो वी कैन से दैट इन मैनेजमेंट इज बोथ एन आर्ट एंड एन इन एग्जैक्ट साइंस. अगर आपको कंक्लूजन पॉइंट लिख के आना है तो आप ये एकदम सिंपल सा कंक्लूजन पॉइंट आप लिख के आ सकते हो कि मैनेजमेंट क्या है, बोथ एन आर्ट एंड एन इन एग्जैक्ट साइंस. रिमेंबर कि प्योर साइंस और सिर्फ साइंस लिख के, रिमेंबर कि आप प्योर साइंस या सिर्फ साइंस लिख के नहीं आएंगे. यू मस्ट मेंशन द वर्ड इन एग्जैक्ट. साइंस प्रोवाइड द नॉलेज वाइल आर्ट प्रोवाइड द स्किल टू अप्लाई दैट नॉलेज इफेक्टिवली. ठीक है, ये कंक्लूजन पॉइंट इफेक्टिव है. यू कैन राइट इन द एग्जाम्स एंड बहुत छोटा भी, आपको ज़्यादा इसमें याद करने का कुछ है नहीं. एंड द थर्ड पॉइंट इज द मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशंस. ओके, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशंस. सो यहाँ पर थर्ड पॉइंट हम पढ़ रहे हैं कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशंस भी कंसिडर किया जाता है. So what is that in a professions? So first we have to learn what is a professions. So professions क्या है? That in professions is an occupations. What is a professions? Professions is an occupations. Remember कि आप कोई भी काम कर रहे हो वो professions हो सकता है. That is backed by the specialized knowledge and training. Whatever your work, if it is backed by the special knowledge and training, that is a professions in which the entry is restricted. Okay. अगर कोई भी काम आप कर रहे हो जो कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग के थ्रू अक्वायर किया गया है एंड आप लर्न हुए किए हो उस चीज़ को करने में, एंड इन विच द एंट्री इज़ रेस्ट्रिक्टेड एंड इट हैज़ द प्रोफेशनल्स एसोसिएशंस. याद रखें कि एक प्रोफेशनल्स एसोसिएशंस होना चाहिए, एथिकल कोड होना चाहिए एंड अ सर्विस मोटिव होना चाहिए. अगर ये सारे फीचर्स अवेलेबल है तो देन वो प्रोफेशंस है. सो अगेन, सो प्रोफेशंस इज एन ऑक्यूपेशंस दैट इज बैक्ड बाय द स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड training in which the entry is restricted per professionals associations, ethical codes and the service motive. So to decide whether the management is a professions, its features are compared with the management. Again हम professions के features को management के features के साथ compare करेंगे. The first one is the well defined body of knowledge. In every professions there is a practice ऑफ द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. हम किसी भी नॉलेज को लेकर प्रैक्टिस करते हैं विच हेल्प द प्रोफेशनल टू गेन द स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ दैट प्रोफेशंस. किसी भी एक नॉलेज पॉइंट को फील्ड में हम प्रैक्टिस करते हैं, किस लिए? जो कि प्रोफेशनल्स को हेल्प करता है टू गेन स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मतलब उसमें वो और स्पेशल बने of that professions. In case of the management also there is an availability of the systematic body of knowledge. There are the large number of the books available on the management studies. Scholars are studying the various business situations and are trying to develop new principle to tackle these situations. अगेन यहाँ क्या बोल रहा है कि दैट एन एवरी प्रोफेशन हैज़ अ सिस्टमैटिक एंड अ स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, एंड मैनेजमेंट के पास भी ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ द बुक्स, जर्नल्स एंड द रिसर्च स्टडीज, एंड द स्कॉलर्स कंटिन्यूसली डेवलप्ड करें न्यू मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को. सो दिस फीचर्स ऑफ द प्रोफेशंस इज प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट. ओके, द सेकेंड वन इज द रेस्ट्रिक्टेड एंट्री. The entry to a professions is restricted through an examinations or degree. अगर ये भी हो सकता है कि आपका एंट्री रेस्ट्रिक्टेड हो उस प्रोफेशंस में, एग्ज़ाम हो, जैसे मेडिकल एग्ज़ाम होता है, सीए एग्ज़ाम होता है, सीएस एग्ज़ाम होता है, कि यू कांट एंटर रैंडमली कि हाँ मैं सीए हूँ, सीएस है. नहीं, उसका एंट्री कैसे, आपको वो वर्ड बोलने के लिए भी उसको यूज़ करने के लिए क्या करना होगा कि आपको एक एग्जामिनेशन प्रोसेस के एंड ट्रेनिंग प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करना होगा. फॉर एग्जांपल, अ पर्सन कैन प्रैक्टिस एज एन डॉक्टर ओनली व्हेन ही इज हैविंग एन MBBS डिग्री, whereas there is no legal restrictions on the appointment of the manager. Anyone can become a manager irrespective of the educational qualification, but now many companies prefer to appoint the manager only with MBA degree. So यहाँ पे क्या बोला है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री बोल दिया गया है कि किसी भी प्रोफेशंस में आपका एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होता है, या तो एग्जामिनेशंस के थ्रू या तो डिग्री के थ्रू, कि आपके पास डिग्री होगा तभी, ये वाली डिग्री होगी तभी आप उस प्रोफेशंस में एंटर कर सकते हो, या फिर आपको इस एग्जामिनेशन को पास करना होगा तभी आप वो प्रोफेशन में प्रैक्टिस कर सकते हो. लाइक फॉर अ CA में यू मस्ट हैव पास द एग्जामिनेशंस
final examinations and go through the training process, then you can practice in that professions. Okay. लेकिन मैनेजर्स के अपॉइंटमेंट के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई क्वालिफिकेशंस बैकग्राउंड का रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. एनीवन कैन बिकम अ मैनेजर. हाउएवर द कंपनीज नाउ इट इज़ द प्रेफर द मॉडर्न कंपनीज आर, जो भी कंपनीज अभी के सिचुएशंस में इन्वायरमेंट के, दे प्रेफर कि कोई भी पर्सन अगर मैनेजमेंट के मैनेजर के पोस्ट पे, सो उसके पास एटलीस्ट MBA का डिग्री हो, ही हैज़ द नॉलेज ऑफ द मैनेजमेंट इन डेप्थ. ओके. So presently this features is not present in the management, but very soon it will be included with the statutory backing. हो सकता है कि predictions किया गया, assumptions किया गया कि in future ऐसा हो सकता है कि ये management में भी restrictions ला सकते हैं. The third point is the presence of the professional associations. For all the professions, special associations are established and every professional has to get himself registered with his associations before practice that professions. किसी भी professions के लिए एक special associations को form किया जाता है, established किया जाता है, and जो भी उस professions के professionals होते हैं, members होते हैं, उनको compulsory register करना पड़ता है अपने आप को उस associations के साथ. Like a doctor have to get himself registered with the Medical Council of India, lawyer with the Bar Council of India, CA with a Chartered Accountant ICSI, CS with a ICSI, and the CMA with a ICMI. Okay. In case of the management, various management associations are set up at the national and international levels which have some membership rules and set of the ethical codes. यहाँ पे क्या बोला है कि अगर मैनेजमेंट के केस में हम देखें तो वेरियस मैनेजमेंट एसोसिएशंस है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, जो कि क्या कर रहे हैं, दिस हैव सम मेंबरशिप रूल्स. उनके पास कुछ रूल्स है कि आपको मेंबरशिप लेने के लिए ये कंप्लाई करना होगा, और एथिकल कोड्स भी है कि आपको ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होगा. फॉर एग्जांपल्स, AIMA in New Delhi, National Institute of the Persons Management at Kolkata, but legally it is not compulsory for the managers to become a part of these organizations by registrations. Okay. So we can say that in registrations is not compulsory by law. So these features is not fully present in the management. So presently these features of the professions is not present in the management, but very soon it will be included and get statutory backing also. Again यहाँ पर assumptions क्या है, present नहीं है but assumptions क्या है, ठीक है. Existence of the ethical codes. For every professions there are set of the ethical codes fixed by the professional organizations. जो आपके professional ethical codes कौन set करता है? Professionals? No, the professionals organizations. Okay, remember? And are binding on all the professionals. That an एक ethical codes होते हैं जो कि professionals organizations उनको fixed करते हैं कि ये वाला code होगा organizations का. That is binding. याद रखना कि वो ऐसे रैंडमली नहीं है, वो बाइंड होगा, वो उस पर्सनस पर कंपलसरी एप्लीकेबल होगा, प्रोफेशनल्स पर ऑफ दैट प्रोफेशंस. इन केस ऑफ मैनेजमेंट देयर इज अ ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन द एथिकल बिहेवियर ऑफ द मैनेजमेंट. अच्छा, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट कि किसी भी प्रोफेशंस में आप देखोगे कि एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एथिक्स फॉलो किया जाता है. एंड वो एथिक्स कौन बनाता है? वो प्रोफेशनल्स ऑर्गेनाइजेशंस बनाता है. किसके लिए? प्रोफेशनल्स के लिए जो उसके मेंबर्स हैं एंड प्रैक्टिस कर रहे हैं उस प्रोफेशंस में. ओके. इन केस ऑफ द मैनेजमेंट देयर इज अ ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन द एथिकल बिहेवियर ऑफ द मैनेजर्स. अगर अभी के मैनेजमेंट के कंसेप्ट में देखें तो एक ग्रोइंग एम्फेसिस दे रहा है कि मतलब ज़्यादा फोकस दे रहा है आप किस में? एथिकल बिहेवियर ऑफ द मैनेजर्स, कि मैनेजर्स का एक एथिकल बिहेवियर होना चाहिए. All India Management Associations has devised a code of conduct for Indian managers, but again legally it is not compulsory for all the managers to get registered with IIM and abide by the ethical codes. Again remember कि ये compulsory नहीं है अभी managers के लिए, and managers are not bound to follow them, so this features is partially present. Again same point. Next is service motive. The basic motive of every profession is to serve the client with dedications. किसी भी प्रोफेशंस का, अगर आप कोई भी डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एग्जामिनेशंस दे रहे हो और CMA कर रहे हो, सो ये एक प्रोफेशनल्स है. तो इनका बेसिक मोटिव क्या होता है कि अपने क्लाइंट को बेस्ट सर्व करे, क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करे विद डेडिकेशंस. ओके. Whereas the
पर्पस ऑफ द मैनेजमेंट इज़ द अचीवमेंट ऑफ द मैनेजमेंट गोल। लेकिन मैनेजमेंट का क्या पर्पस है कि मैनेजमेंट गोल को आप अचीव करो, ठीक है, मैनेजमेंट गोल हो, कोई भी गोल को अचीव करो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। फॉर एग्जांपल फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस द गोल कैन बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस, ठीक है, दैट इन द प्रोफेशंस और either we can say that in the profession focus on the service to society, whereas the management traditionally focus on the profit maximizations, क्योंकि अभी nowadays only profit maximizations cannot be sole goal of an enterprise। ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट का मेन गोल है कि मैनेजेरियल गोल जो आपका है उसको अचीव करो, बट ये एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट है। nowadays only profit maximizations cannot be the sole goal of an enterprise to survive in the market for a long period of time। a businessman must give due importance to the social objectives along with economics ऑब्जेक्टिव, लाइक अपने इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव के साथ साथ वो सोशल ऑब्जेक्टिव को भी इंपॉर्टेंस दे, तभी वो मार्केट में सर्वाइव कर सकता है। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन द नाउ डेज इन द एनवायरनमेंट टू सर्वाइव इन द मार्केट by neglecting the social objectives। okay, so presently these features of the professions is not present but very soon it will be included। so on conclusion, so यहाँ पर complete है management as a professions। so on conclusion point of view में हम क्या बोल सकते हैं कि on comparing the features of the professions with the management we conclude that all the features of the professions are not fully present in management। therefore management is not a full-fledged professions at present but it is on the path of becoming a professions and may soon receive statutory recognitions। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब आप कंपेयर कर रहे हो प्रोफेशंस के फीचर्स को मैनेजमेंट के साथ तो कंक्लूजन्स क्या आ रहा है कि दैट फीचर्स दैट जितने भी मैनेजमेंट के प्रोफेशंस के फीचर्स हैं दैट आर नॉट फुल्ली प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। सो ये मैनेजमेंट क्या है, फुल फ्लेज प्रोफेशंस नहीं है एट प्रेजेंट। यहाँ पे क्या बोला, एट प्रेजेंट फुल फ्लेज प्रोफेशंस नहीं है बट इट इज़ ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशंस एंड मे सून रिसीव द स्टैट्यूटरी रिकग्नाइजेशंस। ये इन द प्रोसेस है प्रोफेशंस बनने के, एंड या तो हो सकता है कि आगे जाके स्टैट्यूटरी रिकग्नाइजेशंस भी इसको बहुत जल्दी मिल जाए। सो कंक्लूजन पॉइंट पे यहाँ पे जो कंक्लूजन्स दिए हैं सेम मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया वही वाला कंक्लूजन्स है कि ऑन कंपेयरिंग द फीचर ऑफ द प्रोफेशंस विद द मैनेजमेंट वी कंक्लूड दैट ऑल फीचर्स ऑफ द प्रोफेशंस are not fully present in the management। therefore the management is not a full-fledged professions at present but it is on the path of becoming a professions and may soon receive the statutory recognitions। understood? now अगर एक केस स्टडीज़ आ गया कि वेदर द मैनेजमेंट इज़ अ मिक्स्ड केस स्टडीज़ आ गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि इतना लंबा केस स्टडीज़ या किसी टॉपिक पर क्वेश्चंस बने, लेकिन व्हाट इफ़ इट कम्स इन अ डिफरेंट वे। सो आप एक कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हो या आप एक आंसर लिख सकते हो कि मैनेजमेंट इज़ बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट एंड इट इज़ ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशंस। क्या कि मैनेजमेंट साइंस एंड आर्ट दोनों है एंड इट इज़ ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशंस। इट इज़ अ साइंस। अच्छा, ये साइंस क्यों है? बिकॉज इट हैज़ द सिस्टमैटिक नॉलेज दो इट लैक द यूनिवर्सल वैलिडिटी। हाँ, ऐसा है कि यूनिवर्सल वैलिडिटी इसमें नहीं है लेकिन इसके पास एटलीस्ट सिस्टमैटिक नॉलेज है। और आर्ट क्यों है? बिकॉज इट रिक्वायर द स्किल, क्रिएटिविटी एंड द प्रैक्टिस। okay, and the management also shows some features of the professions but restricted entries, compulsory associations and ethical enforcement are absent। hence management is both an art and an inexact science and an emerging professions। आप ये एक कंक्लूजन्स पॉइंट लिख सकते हो, या फिर अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया कि वेदर मैनेजमेंट इज साइंस, आर्ट, प्रोफेशंस, तो आप ये कंसेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हो। अगेन आई एम सेइंग, रिपीटिंग द सेम थिंग, management is both a science and an art and is on the path of becoming a profession। it is a science because it has a systematic knowledge though it lacks the universal validity। it is an art because it requires the skill, creativity and practice। management also show some features of the professions but restricted entry, compulsory associations and ethical enforcement are absent। hence management is both an art and an inexact science and an emerging professions। अगर आप ये कंक्लूजन्स पॉइंट लिख रहे हैं तो ये इट विल बी हेल्पफुल टू द एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड आपके लिए भी अंडरस्टैंड टू रिकॉल करने के लिए, और एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ यू हैव द वेल नॉलेज ऑफ दैट टॉपिक। ओके, moving to the next topic is the level of the management। okay,
So as we have already learned that in management does not refer to the single individual, हमने पहले ही पढ़ चुका है कि management single individual पर refer नहीं करता. It is a group activity, but it refer to a group of persons. In companies, large number of the persons are employed and placed at a different place to perform the different managerial activities. Like पहले ही हमने पढ़ा है कि management का क्या मतलब है, does not refer to a single individual but are referring to a group of the persons. सो कंपनीज़ में क्या होता है ना कि लार्ज नंबर ऑफ द पीपल, लाइक बहुत सारे इंसान को एम्प्लॉय किया जाता है, उनको अपॉइंट किया जाता है एंड डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर वो रहते हैं टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस. ओके, मैनेजरियल एक्टिविटी, कोई प्लानिंग वाले पोजीशंस में रहता है, कोई डायरेक्टिंग पोजीशंस में रहता है, कोई स्टाफिंग पर, लाइक एच आर कहाँ रहेगा, वो स्टाफिंग पोजीशंस पर रहेगा कि वो एम्प्लॉयज़ पर्सनस को एम्प्लॉय करेगा. कोई डायरेक्टिंग पोजीशंस पर रहेगा, कोई ऑर्गेनाइजिंग के पोजीशंस पर रहेगा और कोई कंट्रोलिंग पोजीशंस पर रहेगा, मॉनिटरिंग पोजीशंस पर कोई रहेगा. तो ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सनस एम्प्लॉय होते हैं एंड उसके अंदर भी, उस हेड के अंदर भी बहुत सारे सब हेड में लोग रहते हैं जो कि इस फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं सो दैट दे गेट द बेटर एंड रिजल्ट्स. So, in companies, large number of the persons are employed, okay, and placed at different places to perform the different managerial activity. To carry on these activities, these employees are given necessary authority and responsibilities. अच्छा, ये जो भी लोगों को अपॉइंट किया जाता है, डिफरेंट पोजीशंस पर इनको रखा जाता है, तो इनके कोई भी काम करने के लिए इनके पास दे मस्ट हैव द अथॉरिटी एंड दे मस्ट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी. सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होने से नहीं होता, अथॉरिटी भी उसके साथ होना चाहिए. सो दे मस्ट हैव बोथ द अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस ग्रांट ऑफ द अथॉरिटी रिजल्ट इन द क्रिएशंस ऑफ द चेन ऑफ अथॉरिटी. इसकी वजह से क्या होता है ना, एक चेन ऑफ अथॉरिटी क्रिएट होता है. आप जो भी अथॉरिटी उनको दे रहे हो तो एक चेन ऑफ अथॉरिटी कहता है. टू परफॉर्म, और वी कैन से दैट टू परफॉर्म द मैनेजरियल एक्टिविटी इफेक्टिवली, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, क्रिएटिंग अ चेन ऑफ अथॉरिटी विच रिजल्ट इन द 3 लेवल ऑफ द मैनेजमेंट. दिस ग्रांट ऑफ द अथॉरिटी रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ द चेन ऑफ अथॉरिटी. चेन ऑफ अथॉरिटी मतलब एक इंसान रहेगा, वो टॉप पर रहेगा, उसके अंदर एक रहेगा एंड देन उसके अंदर एक रहेगा. ठीक है. This chain is divided into 3 levels which result in the creations of the 3 levels of the management. And the 3 levels of the management is the top level management, middle level management, supervisory level, operations and lower level management. ठीक है. So in this portions we will discuss the level of the management. Okay, so far we have learned that there are the 3 levels of the management: top level management, middle level management, and supervisory level and operational level management. Okay, so first we will discuss about the top level management. Who are in the top level management? ऐसा सुना होगा कि top level, वो तो top level officers है, वो तो top level persons है. So who are in the top level management? management के top level में कौन कौन रहता है? So ये कौन होते हैं? senior most executive of the organizations. Senior most executive of the organizations. Executive persons, executive of the organizations मतलब those persons who are executing the plan, policies, this. So senior most executive of the organizations and the top level management consists of the chairman रहेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर रहेगा, जनरल मैनेजर रहेगा, प्रेसिडेंट रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट रहेगा, CEO रहेगा, CFO रहेगा एंड द COO etc. It include group of crucial persons essentials for leading and directing the efforts of other people. ये क्या करेंगे? ये crucial persons है का ग्रुप है that is essentials for leading and directing the efforts of other people. They lead and direct कि उनके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं उनका efforts किस directions में होना चाहिए. The manager working at this level have the maximum authority. इनके पास बहुत maximum authority होता है as compared to other level of the management. Okay, so यहाँ पर clear है ये, मतलब एकदम इसका डॉट टू डॉट पॉइंट आपको थोड़ा सा लिख के आना होगा कि ये कौन होते हैं. पहला तो सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एंड इसमें कौन कौन आएंगे? चेयरपर्सन आएंगे, चेयरमैन, BOD, MD, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, CEO, CFO, CEO, and it include the group of crucial persons who are essentials for leading and directing the efforts of other people. The managers working at this level have the maximum authority. याद रखिएगा कि जो भी टॉप लेवल पर मैनेजर्स होंगे उनके पास मैक्सिमम अथॉरिटी होगा.
सो इनका फंक्शन क्या है, ये क्या करेंगे, टॉप लेवल पे तो है लेकिन कुछ ना कुछ तो काम इनको करना है ना, तो ये क्या काम करेंगे, डिटरमाइन करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। इट मीन्स दैट दे डिटरमाइन कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा एंटरप्राइज का, आपका जो एंटरप्राइज है वो किस लिए है, अपने एंटरप्राइज को फॉर्म क्यों किया है, तो वो उसका ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करेगा। द टॉप लेवल मैनेजर फॉर्मुलेट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, दे फॉर्म लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। सो टॉप लेवल मैनेजर क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेगा मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, एंड वो या तो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। तो यू कैन ऑल्सो राइट दैट एन टॉप लेवल मैनेजर फॉर्मुलेट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। एंड द सेकेंड पॉइंट इज फ्रेमिंग ऑफ द प्लान्स एंड द पॉलिसीज। आप कोई भी टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करेंगे, पहला बात तो डिटरमाइन करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को, determining the objective of the organization's enterprise, or it can be the short term and long term, and then प्लान फॉर्म करेंगे एंड पॉलिसीज करेंगे। द टॉप लेवल मैनेजर्स ऑल्सो फ्रेम द प्लान्स एंड पॉलिसी टू अचीव द सेट ऑब्जेक्टिव। पहले आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया, उसके बाद आप प्लान करेंगे एंड प्लान बनाएंगे एंड पॉलिसीज फ्रेम करेंगे कि आप उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव कर पाए। द थर्ड पॉइंट इज ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी टू बी परफॉर्म्ड बाय द पर्सन वर्किंग एट मिडिल लेवल। आपने पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया, फिर प्लान एंड पॉलिसीज़ बनाए, उसके बाद एक्टिविटी को आप ऑर्गेनाइज करोगे कि अच्छा आपके जो अंडर जो मिडिल लेवल है, आपके नीचे जो मिडिल लेवल है वो कैसे परफॉर्म करेंगे। द टॉप लेवल मैनेजमेंट असाइन करेंगे जॉब्स को टू डिफरेंट इंडिविजुअल वर्किंग एट अ मिडिल लेवल। सो मिडिल लेवल पर जो भी काम कर रहे हैं उनको टॉप लेवल काम को असाइन करता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, ठीक है। एंड असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज द फाइनेंसेस, फिक्स्ड एसेट्स, ये वाला काम कौन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। आप ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट, असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज द फाइनेंस एंड द फिक्स्ड एसेट्स। द टॉप लेवल मैनेजमेंट arranges all the finances required to carry on day-to-day activity. They buy the fixed asset to carry on the activity of the in the organizations. So ये डिसीजन कि कौन सा एसेट्स खरीदना है, कितना फाइनेंस लगेगा किसी एक्टिविटी में, किस डिपार्टमेंट को कितना फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये किसका डिसीजन होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टॉप लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल एंड द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दे मेक द प्लान टू रन द ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली एंड सक्सेसफुली। यहाँ पर क्या करें, टॉप लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस का ग्रोथ कैसे कर सकते, सर्वाइव कैसे कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, क्या प्रॉफिट प्रॉपरली अर्न कर रहा है कि नहीं, ये सब देखना है। इट विल एंड दे विल ऑल्सो मेक अ प्लान टू रन द ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली एंड सक्सेसफुली, कि आपका ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली जाए एंड सक्सेसफुली जाए, उसके लिए वो प्लान बनाते हैं। एंड लाइसेंस विथ आउटसाइड वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मतलब कनेक्शंस रखते हैं। द टॉप लेवल मैनेजमेंट्स रिमेन इन कॉन्टैक्ट विथ गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, मीडिया एटसेट्रा। जॉब ऑफ द टॉप लेवल आर कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल, डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स ऑफ द कमिटमेंट टूवर्ड द ऑर्गेनाइजेशंस। सो और एक काम क्या करेंगे, क्या इन कॉन्टैक्ट, दे ऑलवेज स्टे इन कॉन्टैक्ट विथ द गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर, सप्लायर एटसेट्रा टू स्टे अपडेटेड, ओके। And to integrate the diverse element and coordinate the activity of the different department according to overall objective. Objective के according वो जो diverse element है organizations में and activities है different departments को, उनको coordinate करते हैं and integrate करेंगे किसके basis किस directions में, objective achieve करने के direction में। And analyze, they also analyze the business environment and in the implications for the survival of the firm. That top लेवल ऑफिसर्स हैव दैट काइंड ऑफ द एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट होते हैं वहाँ पर, ठीक है। दे हैव द नॉलेज, दे रन द बिजनेस। सो उनको पता होना चाहिए, पता होता है कि अच्छा एनवायरनमेंट अभी कैसा है, ठीक है, एंड उस एनवायरनमेंट का हमारे ऑर्गेनाइजेशंस पे क्या क्या इम्पैक्ट होगा, एंड वेदर हमारा ऑर्गेनाइजेशंस उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं, ठीक है। पहले तो देखेंगे कि सर्वाइवल पॉसिबल है कि नहीं, देन थिंक अबाउट द ग्रोथ, ओके। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट्स ऑन द सोसाइटी। एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे वो जो भी एक्टिविटी करेंगे उसके लिए, एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट्स ऑन द सोसाइटी, एंड उस एक्टिविटी का जो भी इम्पैक्ट आएगा सोसाइटीज़ पर उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल्स है। द जॉब ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स इज कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल, demanding long hours and commitment to the organizations. Again these lines are repeating. So यहाँ पर बोला गया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन है,
So top level are the senior most executives. Again, top level management consists of the senior most executive of the organizations, and it consists of the chairman, board of director, managing director, CEO, CFO, president, vice president, general manager and the COO etc. इनका मेन फंक्शंस क्या है, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो पॉइंट टू पॉइंट, या फिर आप अपने हिसाब से बुलेट पॉइंट्स भी लिख सकते हो कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट्स ऑन द सोसाइटीज. They will analyze the business environment and its implications for the survival of the firm. They integrate the diverse element and coordinate the activity of the different departments. They determine the objectives of the enterprise, frame the policies and the plans and the policies, organizing the activities and assigning the works to the middle level managers. असेंबल करते रिसोर्सेज को लाइक फाइनेंस एंड द फिक्स्ड एसेट्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर, सर्वाइवल एंड द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, लाइजनिंग और इन कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट, सप्लायर, कंपटीटर्स एंड सोसाइटीज, coordinate the activity of the different department, analyzing the business environment and its impacts on the firm. इसमें से 4-5 पॉइंट आपको याद होना चाहिए so that you will able to write in the exams. Okay. द नेक्स्ट इज़ द मिडिल लेवल मैने. याद रखिएगा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट्स को क्या करना है, ज़्यादा टाइम कमिटमेंट, दे कमिट more time as compared to the other level management, okay, because they are responsible for the activity of the organizations and its impacts on the society, okay, so they must be thinkful of their activities, of their actions, of their decisions, okay. मिडिल लेवल मैनेजमेंट. सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, कंसिस्ट होता है डिपार्टमेंटल हेड. जो भी डिपार्टमेंटल हेड होगा उसका वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में इंक्लूड होगा. सच इज़ द परचेज डिपार्टमेंट हेड, सेल्स डिपार्टमेंट हेड, फाइनेंस मैनेजर्स, मार्केटिंग मैनेजर्स, plant superintendent etc. People of this group are responsible for executing the plans and policy made by the top level. अच्छा, अभी तक हमने टॉप लेवल पढ़ लिया कि टॉप लेवल ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, प्लान एंड पॉलिसी बनाएगा, एलोकेट करेगा, असाइन करेगा जॉब को, असेंबल करेगा रिसोर्सेज को, फिर वेलफेयर एंड सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, इन कॉन्टैक्ट रहेगा, इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट करेगा एक्टिविटी को, एनालाइज करेगा बिजनेस एनवायरनमेंट को, रिस्पॉन्सिबल रहेगा एक्टिविटीज़ के लिए. सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन इंक्लूड होंगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस में उसके जो हेड होंगे वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट्स में होंगे, ठीक है. एंड देन पीपल ऑफ दिस ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान एंड पॉलिसीज मेड बाय द टॉप लेवल. अच्छा, पहला पढ़ा कि टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव सेट करेगा एंड प्लान बनाएगा उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. सो प्लान तो बना दिया, आपके एग्जीक्यूट भी करेगा तो नहीं. टॉप लेवल मैनेजमेंट एग्जीक्यूशंस में नहीं रहते हैं, वो फॉर्मेशंस में रहते हैं. एग्जीक्यूशंस के लिए कौन है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट. सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान एंड पॉलिसी मेड बाय द टॉप लेवल. एंड सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा कि द पीपल ऑफ दिस ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान एंड पॉलिसीज मेड बाय द टॉप लेवल. जो आपका टॉप लेवल है ना, उन्होंने जो भी प्लान बनाया, पॉलिसीज बनाया, उसको मिडिल लेवल क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ओके. सो दे एक्ट एज अ लिंकिंग पिन बिटवीन द टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. मतलब लोअर लेवल मैनेजमेंट ने जो प्लान एंड पॉलिसीज़ बनाए इसको इम्प्लीमेंट करेगा एंड देन हेल्प भी करता है एंड कम्युनिकेट भी करेगा लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ. सो एक लिंकिंग पिन है between top level and the lower level. They also exercise the functions of the top level for their department as they make the plan and policy for their department, organize and collect. अच्छा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट तो हम लोग क्लियर कर लिया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो प्लान बनाएंगे उनको एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन मिडिल लेवल मैनेजमेंट ऑल्सो एक्ट एज अ टॉप लेवल फॉर देयर डिपार्टमेंट, बिकॉज वो हेड है ना. कोई भी अगर समझो परचेज डिपार्टमेंट, तो परचेज डिपार्टमेंट का हेड मिडिल लेवल में आता है, तो हेड भी तो प्लान एंड पॉलिसीज़ बनाएगा ना कि वो उसका परचेज जो डिपार्टमेंट है वो कैसे फंक्शंस करेगा, या परचेज डिपार्टमेंट में जो भी लोग हैं उसके अंडर में वो कैसे परफॉर्म करेंगे जॉब को. सो दे इस पॉइंट के लिए वो एज अ वर्क करते हैं क्या, टॉप लेवल फॉर देयर डिपार्टमेंट, ओके. So the main functions are the functions of the middle level management are interpretations of the policies framed by the top management to the lower level. Middle level management act as a linking pin between top level and lower level management. They only explain the main plans and policy framed by top level management to the lower level. यहाँ पे क्या बोला है, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो भी प्लान बनाया है उसको इंटरप्रेट करेगा, उसको समझाएगा, किसको, मिडिल लोअर लेवल मैनेजमेंट को, ठीक है, कि देखो ये प्लान है टॉप लेवल मैनेजमेंट्स का एंड इसके हिसाब से, ठीक है. एंड दे ऑल्सो एक्सप्लेन द मेन प्लान्स एंड पॉलिसीज. सेकेंड इज द ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ देयर डिपार्टमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज. सेकेंड इज द
पहले तो उन्होंने इंटरप्रेट कर दिया लोअर लेवल मैनेजमेंट को ना, अपना एक्टिविटी, अपना खुद के डिपार्टमेंट का एक्टिविटी को वो ऑर्गेनाइज करेंगे, किस लिए? फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स एंड द पॉलिसीज. जनरली मिडिल लेवल मैनेजर्स आर द हेड ऑफ सम डिपार्टमेंट, सो दे ऑर्गेनाइज ऑल द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटी ऑफ देयर डिपार्टमेंट. ओके, सो अपने ही डिपार्टमेंट के एक्टिविटी को एंड रिसोर्सेज को वो ऑर्गेनाइज करे, किसी और डिपार्टमेंट के नहीं. जिस डिपार्टमेंट को वो हेड होंगे उस डिपार्टमेंट का. द थर्ड इज द फाइंडिंग आउट or recruiting or selecting and appointing the required employee for the department. The middle level management select and appoint the employees of the department. middle level management क्या करेंगे? जो भी middle level का head रहेगा वो अपने अंडर लोगों को अपॉइंट करेगा, रिक्रूट करेगा. ओके, एंड मोटिवेटिंग द पर्सन टू परफॉर्म टू द बेस्ट एबिलिटीज़. एंड उसके अंडर में जो लोग हैं उसको बेस्ट एबिलिटी टू बोलता है, अब उसको मोटिवेट करता है कि अपना बेस्ट दे. मिडिल लेवल मैनेजमेंट ऑफर वेरियस इंसेंटिव टू द एम्प्लॉइज सो दे गेट मोटिवेटेड एंड परफॉर्म दैट. कुछ इंसेंटिव देता है एज पर द नीड ऑफ द एम्प्लॉयड. ये मिडिल लेवल को पता होता है कि एम्प्लॉइज़ का क्या नीड है अभी प्रेजेंट सिनेरियोज में, तो उसके उसको दिखा के या उसको बोल के वो उनको मोटिवेट करता है कि अच्छा, इफ़ यू परफॉर्म दिस जॉब विद इन दिस टाइम यू विल गेट द इंसेंटिव. ऐसे भी कुछ भी करके उनको मोटिवेट करता है. एंड कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटी ऑफ द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स. वो अपने डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे. सो आई होप कि आपको टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो एंड उनके फंक्शंस क्लियर हो. ओके, सो द थर्ड पॉइंट इज़ द सुपरवाइजरी लेवल और द लोअर लेवल और ऑपरेशनल लेवल. याद रखिए कि यहाँ से इन तीनों लेवल में से क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ में बन सकते हैं. थोड़े ट्रिकी है तो फुल कंसंट्रेशन के साथ ये पॉइंट्स पढ़िए. दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ द सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, foreman and sub-department executive, clerk, etc. Manager of this group actually carry on the work or perform the activity according to the plans of the top and middle level management. Their authority is limited. याद रखिएगा कि इसमें कौन कौन रहेंगे? सुपरवाइजर रहेंगे, सुपरिटेंडेंट रहेंगे, फोरमैन रहेंगे, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स रहेंगे, क्लर्क रहेंगे. अच्छा, इस लेवल के जो मैनेजर्स रहेंगे वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल रहते परफॉर्मेंस करने के लिए. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्लान, जो भी प्लान बनाया टॉप लेवल ने एंड मिडिल लेवल में. क्या इनकी अथॉरिटी बहुत लिमिटेड है बिकॉज ये लोअर लेवल है, ये मिसयूज़ कर सकते हैं अपने अथॉरिटी को बिकॉज इनके पास उतना रिक्वायर्ड नॉलेज नहीं होगा. मिसयूज़ इन द सेंस इनके पास नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए इनके पास अथॉरिटी बहुत लिमिटेड होती है. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है. द क्वालिटी एंड द क्वान्टिटी ऑफ द आउटपुट डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ दिस लेवल ऑफ द मैनेजर. कोई भी क्वालिटी एंड क्वांटिटी आपका आउटपुट का वो डिपेंड करता है इस लेवल टॉप लोअर लेवल मैनेजमेंट का एफिशिएंसीज पर. दे पास ऑन द इंस्ट्रक्शन टू द वर्कर एंड रिपोर्ट टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट. तो लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं कि अपने वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं ऐसे काम करो, एंड फिर वही रिपोर्टिंग भी करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट को. दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स. वर्कर्स में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. Now the functions that in representing the problems or grievances of the worker. अच्छा, सो टॉप लेवल तो प्लान बना दिया, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, मिडिल लेवल इसको इंटरप्रेट किया लोअर लेवल को, लोअर लेवल ने अपने इंस्ट्रक्शन दे दिया वर्कर को. लेकिन वर्कर्स के कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ ग्रीवेंसेस है, ग्रीवेंसेस मतलब कुछ असुविधाएं हैं, तो उसको कौन सॉल्व करेगा? सो वो रिप्रेजेंट करते. तो लोअर लेवल एज ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में मिडिल लेवल को टॉप लोअर लेवल मैनेजर्स जो वर्कर्स हैं उनके प्रॉब्लम्स को एज ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी प्रेजेंट करता है बिफोर किसके? मिडिल लेवल. Before the middle level management, the supervisory level managers are directly linked with subordinate, so they are the right person to understand the problem and grievances of the subordinates. They pass this problem to the middle level management. Maintaining good working conditions and developing the healthy relations between the superior and subordinate. The supervisory manager provide the good working conditions and create the supportive work environment which improve the relations between the supervisors and the subordinate. Looking to the safety of the worker, उन वर्कर का सेफ्टी है कि नहीं, बिकॉज दे आर मोर क्लोजली कनेक्टेड विद द वर्कर्स ना, सो वो इंश्योर करते हैं कि वर्कर्स का सेफ्टी प्रॉपरली है कि नहीं. सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर प्रोवाइड द सेफ एंड सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट फॉर द वर्कर. दे ट्राई टू मेंटेन द प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ द क्वालिटी.
They try to maintain the precise standard of the quality and ensure the steady flow of the output. वो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं, इंश्योर करते हैं कि आउटपुट क्या हो, वो उसका प्रॉपर फ्लो रहे. The supervisory level manager makes sure that an quality standard are maintained by the worker, कि workers quality जो भी काम करे उसका quality standard maintain करे. They are responsible for boosting the morale of the worker and developing the team spirit in them. They motivate the employees and boost their morale. Okay. Minimizing the wastage of the materials and maintaining the safety standard, interact with the actual workforce and pass on the instructions of the middle level management. जो भी middle level management instructions दे रहा है उसको अपने workers के through तक पास करता है. and responsible for quality, quantity of the output and loyalty of the worker. The quality and quantity of the output depend upon the hard work, discipline and loyalty और वर्कर्स, एंड वर्कर्स आर कंट्रोल एंड मैनेज बाय द सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स. याद रखिए कि तीनों का फंक्शंस आपका कंसेप्ट क्लियर हो, बिकॉज ये कंफ्यूजिंग हो सकता है थोड़ा सा अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, एंड एमसीक्यूज में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है. लास्ट में बोला गया है दैट एंड फोकस ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शंस एट अ डिफरेंट लेवल. एनी पर्सन हु परफॉर्म द मैनेजरियल फंक्शंस, कोई भी पर्सन अगर मैनेजरियल फंक्शंस परफॉर्म करे, याद रखिएगा जब भी मैनेजरियल फंक्शंस का बात होगा, इट मीन्स द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इज कंसिडर्ड एज अ मैनेजर्स. एनी पर्सन हु परफॉर्म द मैनेजरियल फंक्शंस इस कर, कोई भी पर्सन अगर मैनेजरियल फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, मतलब कौन सा फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, तो उसको क्या बोलेंगे, मैनेजर्स. सो एक यहाँ से एमसीक्यूज भी आ सकता है कि हु इज़ अ मैनेजर्स, दैट इन एनी पर्सन हु इज़ परफॉर्मिंग ए मैनेजरियल फंक्शंस इज कॉल्ड अ मैनेजर्स. ओके. द फोकस ऑफ डिफरेंट लेवल इज एट अ डिफरेंट फंक्शन सच एज द top level concentrate on planning and organizing, middle level keep their focus on staffing and coordinations, lower level focusing on directing and controlling as they give direction to the worker. तो ये सब क्या है, मैनेजर्स. देखो कैसे ये पूरे फंक्शंस को देखो कैसे डिवाइड किया गया है. ये पहला दो फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा, टॉप लेवल. उसके बाद स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग वाला कौन परफॉर्म कर रहा है, डायरेक्टिंग वाला, ये ठीक है, कोऑर्डिनेशंस. एंड द लोअर लेवल फोकस ऑन द डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग को एज एन. अच्छा ठीक है. अच्छा, टॉप एंड मिडिल लेवल देन मॉनिटरिंग फंक्शंस, एंड ये तीनों पर्सन्स मॉनिटरिंग वाले फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे. सो आई होप आपको यहाँ तक का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो, एंड सो दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर. So moving toward the next part or next concept of this chapter is the functions of the management. I hope previous जितने भी concepts मैंने समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आ गए हो, सो दैट आगे के जो कंसेप्ट्स है, आगे अब दो कंसेप्ट्स बचे हुए, फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट एंड द कोऑर्डिनेशंस. सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड समझने में, कंसेप्ट्स को प्रॉपरली समझने में, कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड एनालाइज करने में प्रॉपरली हेल्पफुल रहेगा. एंड कुछ केस स्टडीज़ एंड एमसीक्यूज दिया गया है एंड चार्ट दिया गया है, इनको आप गो थ्रू कर सकते हो. इट विल हेल्पफुल इन द क्विक रिविजन्स. ओके. सो द नेक्स्ट इज़ द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट. फंक्शंस क्या, अभी तक हम लोग ने पढ़ते आए हैं क्या, फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारा फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट है. एंड इन डेप्थ इसका इंडिविजुअल चैप्टर भी हम पढ़ेंगे इन द फर्दर क्लासेस. सो पहला लाइन बोला है, रिगार्डलेस ऑफ द साइज, नेचर एंड टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ऑल द मैनेजर हैव टू परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस विच आर. सारे मैनेजर्स को एक बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करना रहेगा, जो कि क्या है, प्लानिंग. याद रखना फर्स्ट मैनेजरियल फंक्शंस क्या है, प्लानिंग. Planning is always the first functions performed by every manager. Planning referred to deciding in advance what to do, how to do, when to do, and who is going to do it. Planning क्या है, planning पहला बात है कि first functions है that is performed by every managers, and planning refined, आप decide कर ले रहे हो पहले से ही कि आप क्या करोगे, कब करोगे, कैसे करोगे, कौन करेगा उस चीज़ को. And planning bridge the gap between where we stand today and where we want to reach. प्लानिंग आपका हेल्प करता है कि आप आज कहाँ खड़े हो एंड कल कहाँ तक पहुँचना चाहते हो. ठीक है. सो दिस इज़ द बेस्ट फर्स्ट फंक्शंस ऑफ द मैनेजर. So every manager start with deciding in advance the objective of an enterprise and how to accomplish this objective. Planning is the base of all other functions of the management. So अभी तक हम लोगों ने managerial function पढ़ा, planning. तो planning क्या है, first functions of the management that is performed by every managers. Planning में हम क्या कर रहे हैं, हम डिसाइड कर रहे हैं इन एडवांस. डिसाइड कब करें, एक्टिविटी परफॉर्म होने के बाद नहीं, हम डिसाइड कर रहे हैं इन एडवांस हम क्या करना चाहते हैं, कैसे, कब,
कैसे अकाउंट कौन उसको परफॉर्म करेगा, ठीक है। सो ये ब्रिज करता है एक गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। सो जो भी मैनेजर है, तो एवरी मैनेजर स्टार्ट विद डिसाइडिंग इन एडवांस ऑब्जेक्टिव। सो जितने भी मैनेजर है ना, वो पहले डिसाइड करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए एंटरप्राइज का एंड कैसे आप अचीव करेंगे उस ऑब्जेक्टिव को। सो प्लानिंग क्या है, बेस है कि जितने भी आगे जितने भी फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे उसका बेस है कि पहले हमको प्लान करना है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करेंगे, लेकिन फर्स्ट इज़ द प्लानिंग। द सेकेंड इज़ द ऑर्गेनाइजिंग। द आफ्टर सेटिंग ऑफ द प्लान, देखो यहाँ पर पहला ही क्या लाइन स्टार्ट हो रहा है कि आफ्टर सेटिंग अप द प्लान, मतलब यू मस्ट हैव प्लान्ड समथिंग। नेक्स्ट functions of every manager is to organize the activity and establishing an organization structure to execute the plan। मतलब आपने एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्टैब्लिश किया है तो उस प्लान को एग्जीक्यूट कर लेने के लिए, ठीक है। Setting up organizational structure means deciding the framework of working, how many units and the sub-units or departments are needed, how many posts or designations are needed in each department। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला, ऑर्गेनाइजिंग में हम ध्यान देते हैं कि एक बार हमने प्लान सेट कर लिया है तो नेक्स्ट स्टेप कोई भी मैनेजर परफॉर्म करेगा वो उसका अपनी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने में, कि आपका पहला क्या क्या काम रहेगा ऑर्गेनाइजिंग का, ठीक है। एंड इस्टेब्लिश करेगा एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। अब सिर्फ डिसाइड कर लेने से तो नहीं होगा ना, एक you must have the organizational structure na to execute the plan। Setting up organizational structure means deciding the framework of working, how many units and sub-units or departments are needed। and organizational structure का मतलब क्या होता है, setting up, अगर आप organizational structure set कर रहे हो मतलब आप एक framework define कर रहे हो कि कितने units and sub-units और department होने चाहिए जो कि ज़रूरत है उस प्लान को, उस ऑब्जेक्टिव को परफॉर्म करने के लिए, एंड कितना पोस्ट एंड डेजिग्नेशंस होने चाहिए, कितने इंसान को आप अपॉइंट करना चाहते हो, एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, एंड आप अपना अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे करोगे अमंग द डिफरेंट पीपल। वंस द डिसीजंस आर टेकन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गेट सेटअप, कि वन पहले तो आपने प्लान किया, उसके बाद आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्टैब्लिश करना होगा। उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि डिसाइड करना कि फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग, हाउ मेनी यूनिट्स एंड सब यूनिट्स डिपार्टमेंट्स आर नीडेड, कितने डिपार्टमेंट्स एंड यूनिट्स एंड सब यूनिट्स की ज़रूरत है, हाउ मेनी पोस्ट एंड डेजिग्नेशंस आर नीडेड इन ईच डिपार्टमेंट, एंड आप अपना अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, ठीक है, अमंग द डिफरेंट पीपल, ओके। एंड द थर्ड फंक्शंस इज द स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग इज द थर्ड स्टेप और द फंक्शंस ऑफ अ मैनेजर। स्टाफिंग क्या है, थर्ड स्टेप। इट रेफर टू रिक्रूटिंग स्लेव। पहले आप इसमें डिसाइड कर लिए कि आपको कितने डिपार्टमेंट चाहिए, कितने डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट डेजिग्नेशंस होने चाहिए, वो सब। सो अब वो पोस्ट और डेजिग्नेशंस, डिपार्टमेंट के पोस्ट एंड डेजिग्नेशंस को फिल करने के लिए आपको तो रिक्रूटमेंट करना होगा ना, उस पोस्ट को फिल करने के लिए उस डिपार्टमेंट के पोस्ट, जो भी पोस्ट एंड डेजिग्नेशंस है उसको फिल करने। सो स्टाफिंग में आपका क्या इंक्लूड हो जाएगा, सो पहले याद रखना है कि स्टार्टिंग करेंगे आप फंक्शंस को कि दैट इन स्टाफिंग इज द थर्ड स्टेप और द फंक्शंस फॉर द मैनेजर। इट रेफर टू द रिक्रूटिंग, आप बुला रहे हैं, फिर सेलेक्ट कर रहे हो, अपॉइंट कर रहे हो एम्प्लॉयज़ को, एंड देन उनको उनका ड्यूटीज़ असाइन कर दे रहे हो, एंड मेंटेन द कोऑर्डिनेट रिलेशंस, मतलब एक फ्रेंडली रिलेशंस, एक प्रॉपर रिलेशंस, एंड टेकिंग केयर ऑफ द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल एम्प्लॉयज़। ऐसा नहीं है कि आपने सेलेक्ट किया, अपॉइंट किया, उनको ड्यूटीज़ दे दिया गया एंड रिलेशंस कर, लेकिन उनके ग्रीवेंसेस को आप सॉल्व नहीं करें, उनकी असुविधा जो भी वो प्रॉब्लम फेस करें उनको आप सॉल्व नहीं करें, तो ऐसा नहीं है। स्टाफिंग मतलब ही होता है कि आप रिक्रूट कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो एंड अपॉइंट कर रहे हो, एंड उनको उनकी ड्यूटीज़ असाइन कर दे रहे हो, एंड एक रिलेशंस, प्रॉपर रिलेशंस, फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन कर रहे हो, एंड उनके प्रॉब्लम्स को भी आप समझ रहे हो एंड सॉल्व कर रहे हो। इट ऑल्सो इंक्लूड ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग द एम्प्लॉयज़, deciding their remunerations, promotions, increment, etc. and evaluating the performance, maintaining personal records of the employee। अच्छा, और इसमें क्या होता है ना कि आप जब किसी भी एम्प्लॉय को आप अगर अपॉइंट कर रहे हो, किसी भी पर्सनस को, तो ऐसा हो सकता है उसको कुछ नॉलेज ना हो किसी टॉपिक का, तो आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हो, उसको डेवलपमेंट का ऑप्शंस दे रहे हो, ठीक है, एंड डिसाइडिंग, उस बेसिस पर उसका रेम्यूनरेशंस भी डिसाइड कर रहे हो आप कि अच्छा ठीक है अभी तुमको इतना दे रहे हैं एंड देन ट्रेनिंग के बाद इतना देंगे, प्रमोशंस और इंक्रीमेंट का भी ऑप्शंस आप प्रोवाइड कर रहे हो एक्सेट्रा, एंड उसके बाद वो जो परफॉर्मेंस करे तो उसकी परफॉर्मेंस को आप इवैल्यूएट भी कर रहे हो, मतलब मेजर कर रहे हो कि कितना बेटर वे में परफॉर्म कर रहे हैं।
एंड मेंटेनिंग द पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉयज़ का जो भी पर्सनल रिकॉर्ड है उसको भी आप मेंटेन करोगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको स्टाफिंग वाला अबव 3 फंक्शंस आपको समझ आया हो। डायरेक्टिंग, वंस द एम्प्लॉयज़ आर अपॉइंटेड देयर इज़ नीड टू इंस्ट्रक्ट देम एंड गेट द वर्क डन। देखो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था ना कि आप एम्प्लॉय को रिक्रूट करें, सिलेक्ट करें, अपॉइंट कर रहे हो, ड्यूटीज़ असाइन कर दे रहे हो, उसको इवैल्यूएट कर रहे हो परफॉर्मेंस को। सो जब परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करो तो आपने देखा कि नहीं कुछ गलती कर रहा है, तो जब गलती करेगा तो क्या करेंगे, उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे। सो वो आ जाएगा आपका डायरेक्टिंग के स्टेप में। वंस द एम्प्लॉयज़ आर अपॉइंटेड देयर इज़ अ नीड टू इंस्ट्रक्ट देम एंड गेट द वर्क डन। डायरेक्टिंग रेफर टू गिविंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस टू द एम्प्लॉयज़ बाय मोटिवेटिंग देम, कि नहीं आप अभी तक जो काम कर रहे हो वो सही से करो, बट ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है आप इसको। अगर आपने ऐसा बोला कि अरे तुमको कुछ नहीं आता, सो दैट वहाँ पर एम्प्लॉयज़ का मोराल एकदम लो हो जाता है। लेकिन आप बोले कि नहीं ठीक है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट का ज़रूरत है, तो एम्प्लॉयज़ को लगेगा कि नहीं अच्छा मैं अभी तक ठीक करूँ, मतलब थोड़ा सा और बेटर करूँगी तो मुझे और बेटर रिकग्नाइजेशन मिलेगा, ठीक है। एंड सुपरवाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटी को सुपरवाइज करो कि सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड उनसे एक रेगुलर कम्युनिकेशंस भी रख रहे हो, ठीक है। मैनेजर्स एक्ट एज अ लीडर एंड गाइड देम to the right directions. So directing functions include supervise, motivating, communications and leadership. ठीक है, याद रखिएगा कि एमसीक्यू में भी आ सकता है कि डायरेक्टिंग फंक्शंस क्या है, कि सुपरवाइजिंग करना, मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना एंड लीडरशिप क्वालिटी। कंट्रोलिंग, the last functions of the management is the controlling. So controlling में क्या होता है कि this is the last functions of the manager. In these functions manager try to match the actual performance and planned performance, and if there is no match between both then manager try to find out the reason of deviations and suggest the corrective measure to come on the path of the plan. Controlling function refer to the all the performance measurement and follow-up action that keep the actual performance on the path of the plan. सो कंट्रोलिंग में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कंट्रोलिंग तो देखो एक मैनेजर्स का लास्ट फंक्शंस है। सो इस फंक्शंस में ना वो देखता है कि हमारा जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ है रिजल्ट, वो हमारे स्टैंडर्ड के साथ मैच हो रहा है कि नहीं, और अगर हो रहा है तो देन ओके, ठीक है, कि गुड मैनेजरियल फंक्शंस, इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म किया उसने। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो वो रीज़न देखेगा कि डेविएशंस मतलब डिफरेंस का रीज़न क्या है, ठीक है। एंड रीज़न एक बार पता चल गया तो उसके बाद सजेस्ट करेगा मेजर्स टू कम ऑन द पाथ ऑफ द प्लान, कि मतलब प्लान के पाथ पर आप आए, ठीक है। एंड कंट्रोलिंग फंक्शन रेफर टू ऑल द परफॉर्मेंस मेजरमेंट। कंट्रोलिंग फंक्शंस में क्या क्या आएगा, जितना भी परफॉर्मेंस मेजरमेंट का पॉइंट फंक्शंस है वो, एंड फॉलो अप एक्शंस दैट कीप द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन द पाथ ऑफ द प्लान। सो आई होप आपको एक फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट समझ आया हो एक, क्योंकि यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकता है एंड द केस स्टडीज़ भी आ सकता है, या तो एमसीक्यूज़ में भी से इसमें से बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आई होप कि आपका ये कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो कंसेप्ट को समझने में। So moving toward the next concept, it is the last concept of this chapter is the coordinations. Coordinations means, what do you mean by the coordinations? So coordinations means bringing together the activities of the different individuals, department and the resources in such a way that they work in a harmony to achieve common organizational goal. Coordinations का मतलब जनरल मीनिंग अगर हम देखें तो क्या है कि ब्रिंगिंग टुगेदर, हम ब्रिंग कर रहे टुगेदर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिपार्टमेंट्स एंड द रिसोर्सेज इन अ सच अ वे दैट दे वर्क इन अ हार्मनी, मतलब एक ही डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं टू अचीव द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ओके, अगर एक नॉर्मल क्वेश्चंस आ गया कि डिफाइन द कोऑर्डिनेशंस एंड इट्स बेनिफिट्स, सो कोऑर्डिनेशंस का ये डेफिनेशंस आप लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशंस मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिपार्टमेंट एंड रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट दे वर्क इन अ हार्मोनी टू अचीव द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये इंश्योर करता है कि आपका एक्शंस का यूनिटी हो, अवॉइड करता है डुप्लीकेशंस ऑफ द वर्क, and it help in the effective and efficient use of the resources and maintain the balance among various activities. Okay, so apart from these five functions are what? Five functions are, what are the five functions? The planning, organizing, staffing, directing, controlling. There is one more important functions which every manager has to perform. It means that, and apart from the five functions, the manager must have to perform this function, मतलब compulsory ये perform करना.
दिस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशंस. इट इज़ नॉट ओनली अ फंक्शन बट इट इज़ द एजेंस ऑफ द मैनेजमेंट. इसको सिर्फ एक फंक्शंस नहीं बोल सकते, एजेंस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का. द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइज मतलब सारे एक्टिविटी को एक जगह करता है. सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज अ कोऑर्डिनेशंस. कोऑर्डिनेशंस इज द फोर्स दैट बाइंड ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट. ओके, सो इसको हम, और ये रिक्वायर्ड है एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ऐसा नहीं बोल सकते कि टॉप लेवल में ज़रूरत है, मिडिल में नहीं, लोअर में नहीं, सारे लेवल में ये ज़रूरत है. ठीक है, और इट रिक्वायर्ड आउट ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. एग्जाम्पल के लिए हम सब बोल सकते हैं कि जैसे एक कंपनी में प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट जो है वो क्या करता है, प्लान करता है कि इतना क्वांटिटी हमें प्रोड्यूस करना है. एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, एस्टिमेट करता है कि कितना डिमांड है मार्केट में. एंड जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो प्रोवाइड करता है फाइनेंस. सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने किया कि हमें कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है, एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि कितना मार्केट में डिमांड कितना है, एंड द फाइनेंस प्रोवाइड करता है फाइनेंस. सो कोऑर्डिनेशंस अगर नहीं रहेगा, कोऑर्डिनेशंस अगर समझो वहाँ पर है, तो क्या करेगा, इंश्योर करेगा दैट ऑल द डिपार्टमेंट वर्क टुगेदर सो दैट द राइट क्वांटिटी इज प्रोड्यूस एंड सोल्ड एंड फाइनेंस एट द राइट टाइम. ओके, सो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कितने क्वांटिटी का ज़रूरत है. सो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हम ये नॉलेज ही नहीं, मतलब ये डेटा ही नहीं ले पाएंगे कि अच्छा हमें इतनी डिमांड है तो हम उतना प्रोड्यूस कर पाएंगे. एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता ही नहीं चल पाएगा कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है, तो वो कितना फाइनेंस वो अप्रूव करे. सो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, सो देयर मस्ट बी अ डुप्लीकेशन वर्क एंड देयर मस्ट बी अ वाइड गैप बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. ओके, again the point is that an coordinations is the base or the primary functions of every manager. कोऑर्डिनेशंस क्या है, बेस है और प्राइमरी फंक्शंस है एवरी मैनेजर का. बिकॉज वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड देयर इज नो नीड टू रिलेट और इंटीग्रेट एक्टिविटीज़. क्योंकि क्या होता है ना, दैट एन कोऑर्डिनेशंस इज द बेस एंड प्राइमरी फंक्शंस ऑफ एवरी मैनेजर. बिकॉज बहुत सारे डिपार्टमेंट है ना जो कि ऐसे इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, उनको ज़रूरत नहीं किसी दूसरे डिपार्टमेंट के काम को इंटीग्रेट करने का. ओके, Now, the coordination, the essence of the management, बहुत frequent questions पूछा जाता है यहाँ से. So you must have the clear clarity of the concept. That in coordinations bring the unity of the actions again. That in I have already discussed in the previous page. That in coordinations क्या करता है, unity of the actions लेके आता है एंड इंटीग्रेट करता है डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. एंड जो भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का एक्टिविटीज़ है उसको इंटीग्रेट करेगा. कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड एज द एजेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. अच्छा, इसको एजेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों बोला जाता है, ठीक है. सो ये हमको डिस्कस करना होगा थोड़ा कि कोऑर्डिनेशंस को हम एजेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कंसिडर कर रहे हैं. सो द कोऑर्डिनेशंस इज नीडेड टू परफॉर्म coordinations is needed to perform all the functions of the management. Coordinations that in यहाँ पे क्या बोल रहा है कि coordinations is needed to perform all the functions of management. That in the process of coordinations begin at the planning stage when top management plan for whole organizations. So coordinations में क्या बोल रहा है ना कि that needed to perform all the functions of management, मतलब all 5 functions आपको perform करना पड़ेगा. And ये coordinations कहाँ से start हो रहा है, planning के stage से start हो जा रहा है, ठीक है. And based on the plan then organizational structure is developed. हमने पहला पढ़ा था कि पहले हम प्लान करेंगे, फिर आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, फिर रिक्रूटमेंट करेंगे, फिर इंश्योर करेंगे दैट राइट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान हो रहा है कि नहीं, फिर कंट्रोलिंग करेंगे. सो द प्लानिंग में कोऑर्डिनेशंस क्या बोल रहा है कि बिगिन एट द प्लानिंग स्टेज, कंटिन्यू थ्रू द ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड इंश्योर कंट्रोल बाय मैचिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड ऑब्जेक्टिव. अंडरस्टूड. सो आप अगर इसमें इतना भी लिख के आओगे कोऑर्डिनेशंस इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, आप इतना भी लिख के आए कि कोऑर्डिनेशंस बिगिन एट द प्लानिंग स्टेज, कंटिन्यू थ्रू ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड इंश्योर द कंट्रोल बाय मैचिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड ऑब्जेक्टिव. दैट्स अनफ. मतलब एकदम एक्यूरेट पॉइंट्स है. अब ये ज़रूरत नहीं है कि इतना हर ईच एंड एवरी पॉइंट्स को आप इलेबोरेटली एक्सप्लेन करो, बिकॉज क्या होता है उतना टाइम नहीं रहता एग्जाम में आपको ये, तो आप एज ए
क्रिस्प शॉर्ट एंड क्लियर आंसर भी लिख सकते हो कि बिगिन होता है प्लानिंग स्टेज में, कंटिन्यू करता है थ्रू ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड इंश्योर करता है कंट्रोल बाय मैचिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद अ प्लान्ड ऑब्जेक्टिव. ओके, एंड द कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल. यहाँ पर भी क्या बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या है, जरूरत है ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में चाहिए. दैट इन टॉप लेवल रिक्वायर द कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट द ऑल एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. टॉप लेवल को कोऑर्डिनेशंस क्यों चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशंस का जितना भी एक्टिविटी है उसको इंटीग्रेट करने के लिए. एंड कोऑर्डिनेशंस इज रिक्वायर्ड एट अ मिडिल लेवल टू बैलेंस द एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट. एंड मिडिल लेवल पर कोऑर्डिनेशंस इसलिए डिपार्टमेंट क्योंकि मिडिल लेवल में कौन होता है, डिपार्टमेंटल हेड होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के काम को इंटीग्रेट करने के लिए. एंड लोअर लेवल रिक्वायर द कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट द एक्टिविटी ऑफ द वर्कर. जो डिफरेंट वर्कर डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करे उनके एक्टिविटी को इंटीग्रेट करने के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत है. So the top level required to integrate the activity of the entire organization's middle level to balance and coordinate the activity of the different department, and lower level to coordinate the efforts of the worker. Understood? And the coordinations is the most important functions of the organizations. Any company which fail to coordinate its activity cannot survive and run successfully for a long period of time. Like कोई कुछ भी प्लानिंग कर रहा है, प्लान कर रहा है लेकिन ऑर्गेनाइज अलग तरीके से कर रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा. It is through the process of coordination that a manager ensures the orderly arrangement of the individual and the group efforts in realizations of the common objective. कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए तो मैनेजर इंश्योर करता है, अगर कोऑर्डिनेशन से मैनेजर को ये इंश्योर हो जाता है कि दैट हम एक ऑर्डरली अरेंजमेंट है इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप के एफर्ट्स का. कोऑर्डिनेशंस इन्वॉल्व सिंक्रोनाइजेशंस of a different actions, various units or department. Coordinations make sure that an planned objective are achieved with minimum conflict. Coordinations क्या इंश्योर करता है कि जो भी आपका प्लान ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हुआ है विदाउट एनी डिस्क्रिपेंसीज. डिस्क्रिपेंसीज मतलब डिफरेंसेस नहीं हो ज़्यादा, वो अच्छे से प्रॉपरली अचीव कर ले जाए. कंक्लूजन पॉइंट में देखेंगे तो कोऑर्डिनेशंस देयरफॉर इन्वॉल्व सिंक्रोनाइजेशंस ऑफ द डिफरेंट एक्शंस और एफर्ट्स ऑफ द वेरियस यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस. इट इंश्योर द प्लान ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड विद अ मिनिमम कॉस्ट. After analyzing the above features, we can say that in coordinations is not a simple functions of the management, but it is the essence of the management, or in other words, we can say that all the functions are the flowers and coordinations is the thread that tie this flower to form the garland of the organizations. Okay? कि जितने भी ये जो फंक्शंस है ना, ये फ्लावर्स है एंड द कोऑर्डिनेशंस क्या एक थ्रेड है जो कि वो पूरा लाइक माला बनाने में काम आता है. ठीक है, सो कोऑर्डिनेशंस इंश्योर करता है. आप एक और लाइन में लिख सकते हैं कि ऑल द मैनेजमेंट फंक्शंस आर लाइक फ्लावर्स एंड द कोऑर्डिनेशंस इज द थ्रेड दैट टाई देम इनटू अ गार्लैंड. ओके, अ कंक्लूजन्स पॉइंट में कोऑर्डिनेशंस इंश्योर दैट इन द प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड विथ अ मिनिमम कॉस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट. देयरफॉर कोऑर्डिनेशंस इज नॉट अ सिंपल फंक्शंस बट द thread that bind all the management function together, making it the essence of the management. Understood? I hope कि आपको ये coordinations का basic clear हो. Moving towards the next point is the nature or the features of the coordinations. So coordinations क्या है? First features is the coordinations integrate the group efforts. The concept of the coordinations always apply to the group efforts. There is no need of the coordinations when only single individual is working. अगर कोई एक आदमी काम कर रहा है तो coordinations का कोई ज़रूरत नहीं है. But if they are the group efforts, then there must be the coordinations. Okay. The need for orderliness integrations arise only when more individuals are working, as a different individuals come from different background, have different style of working, so there is need to unity their efforts in the common directions. इसलिए बोल रहा है बिकॉज अगर एक इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं तो देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशंस. लेकिन अगर एक डिफरेंट इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, ग्रुप काम कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशंस का ज़रूरत है बिकॉज डिफरेंट इंडिविजुअल्स कम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड से उनके काम करने का तरीका अलग होता है. लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशंस में ऑब्जेक्टिव तो एक ही अचीव करना है ना एट अ टाइम में, तो सब अलग अलग तरीके से काम करेंगे तो दे माइट बी द कन्फ्लिक्ट, चांस है कि कन्फ्लिक्ट अराइज हो. सो इसलिए कोऑर्डिनेशंस वहाँ यूज़ होता है. और ये भी हम लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशंस इज कंसर्न विद द ग्रुप एफर्ट्स नॉट इंडिविजुअल एफर्ट्स, या कोऑर्डिनेशंस इज रिलेटेड टू द ग्रुप एफर्ट्स नॉट इंडिविजुअल एफर्ट्स. व्हेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड डिफरेंट departments work together, coordinations integrate the activity and direct them towards a common goal. Understood? The second point is to ensure the unity of the efforts.
Coordinations always emphasize on unifying the efforts of different individual because conflicting efforts may cause damages to the organizations. The main aim of every manager is to coordinate the activity and functions of all the individual to the common goal. Ensure the unity of directions में क्या आएगा? Coordination से ensure करता है कि आपका जितने भी departments है work hand in hand and create the balance in all the department. It act as a binding force in all the department. Or we can say that in coordinations unify the efforts of the different individuals and department, avoid करेगा conflicting activities and ensure that all जो भी department है वो साथ में काम करे hand in hand and create करता है एक balance and harmony in the organizations. Understood? कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक बार आपने किसी को प्रोसेस को कोऑर्डिनेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, डन नहीं. कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. कोऑर्डिनेशन इज अ नॉन एंडिंग फंक्शंस, इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शंस ऑल्दो इट्स degree may vary. The managers work continuously to achieve the coordinations and maintain the coordinations because without coordinations companies cannot function efficiently. Okay. सो यहाँ पर बोला कोऑर्डिनेशंस क्या है? एक नेवर एंडिंग फंक्शंस है. इट रिक्वायर्ड एट ऑल द टाइम बिकॉज ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ आर कंटिन्यूस. अच्छा, कोऑर्डिनेशंस कंटिन्यूसली ज़रूरत क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में एक्टिविटी भी तो कंटिन्यूसली परफॉर्म हो रहा है ना. तो जब तक एक्टिविटी परफॉर्म होगा तब तक कोऑर्डिनेशन जरूरी है बिकॉज उन एक्टिविटी को इंटीग्रेट भी तो करना पड़ेगा ना. सो मैनेजर मस्ट कॉन्स्टेंटली वर्क टू मेंटेन द कोऑर्डिनेशंस फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग. सो ये मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेंटेन करेगा कोऑर्डिनेशंस को फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग्स का. कोऑर्डिनेशंस इज परवेसिव फंक्शंस. अगेन मैनेजमेंट में पढ़ा था कि मैनेजमेंट परवेसिव फंक्शंस है. सो कोऑर्डिनेशंस भी परवेसिव फंक्शंस है. एज ए यूनिवर्सल फंक्शंस इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल इन ऑल द डिपार्टमेंट and to perform all the functions due to the interdependence of the various activity on the each other. Interdependence मतलब एक दूसरे पर निर्भर है of the various activity on each other. Business as well as non-business organizations require coordinations. So यहाँ पे क्या बोला है कि coordinations is required at all level of the management in all the department and while performing all the managerial functions is due to किस लिए? Interdependence of the activities. Both business and non-business organizations need the coordinations. The fifth point is the coordinations is the responsibility of all the manager. Coordinations is not the task of only top level managers, but the manager working at a different level try to coordinate the activity of the organizations. The top level try to coordinate the overall plans and the policies of the organizations. Middle level try to coordinate the departmental activity and lower level activity. So यहाँ पर है कि coordinations ना किसी सिर्फ टॉप लेवल का ड्यूटी नहीं है, ठीक है. डेट एंड गी मिक्स है, सबका ड्यूटी है. टॉप लेवल कोऑर्डिनेट करता है ओवरऑल प्लान एंड पॉलिसीज़ को, मिडिल लेवल कोऑर्डिनेट करेगा डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ को, लोअर लेवल कोऑर्डिनेट करेगा वर्कर्स के एक्टिविटीज़ को, ठीक है. एंड द लास्ट point is the coordinations is deliberate functions. Every manager try to coordinate the activity of organization to avoid the confusions and the chaos. अच्छा, यहाँ पे क्या है? मतलब कोऑर्डिनेशन डज नॉट हैपन ऑटोमेटिकली. ओके, ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन अपने आप हो जाएगा, नहीं, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता. डेलिबरेटली मतलब इच्छा करके मैनेजर्स ये करते हैं, ठीक है, टू अवॉइड द कन्फ्यूजन्स एंड द क्यूज, कि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन्स ना रहे, कोई भी लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है. विदाउट कोऑर्डिनेशंस एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी यूनाइटेड. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशंस में कोऑर्डिनेशंस नहीं है सो इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को आप यूनाइट नहीं कर सकते एंड इंटीग्रेट नहीं कर सकते. That is why, while performing the various activity in the organizations, manager deliberately perform the coordination functions. Again, that in coordination does not happen automatically. Managers deliberately and concisely, मतलब सोच समझ के coordinate करते हैं activity को to avoid the confusions, chaos and duplications of the efforts. So this is the natures and the features of the coordinations. I hope कि ये concept आपको पूरा समझ आया हो. Moving toward the last part of this chapter is the importance of the coordinations or the need of the coordinations. यहाँ से बहुत important हो सकता है कि एग्ज़ाम में आ जाए क्वेश्चंस किसी भी फॉर्म में, MCQ के स्टडीज़ डायरेक्ट क्वेश्चन. सो मेक श्योर कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आए. सो कोऑर्डिनेशंस क्या बोल रहा है? दैट इन कोऑर्डिनेशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है? टू इंटीग्रेट करने के लिए. कोऑर्डिनेशंस क्यों ज़रूरत है? टू इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, डिपार्टमेंट्स एंड स्पेशलिस्ट. अच्छा, कोऑर्डिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इंटीग्रेट करता है. इंटीग्रेट मतलब एक जगह करना. एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल, डिपार्टमेंट एंड स्पेशलिस्ट. थ्रू कोऑर्डिनेशंस मैनेजर्स
रिकॉन्साइल डिफरेंसेस इन अप्रोचेस, टाइमिंग, एफर्ट्स एंड इंटीग्रेट। रिकॉन्साइल मतलब एक जगह कर सकते हैं कि क्या अप्रोच में क्या डिफिकल्टीज हो रहा है, टाइमिंग में क्या प्रॉब्लम है, एफर्ट्स में क्या प्रॉब्लम है. सो कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइज द इंडिविजुअल्स गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल्स गोल. द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कैन बी मोर क्लियर बाय फॉलोइंग पॉइंट्स. सो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन बहुत एसेंशियल है, किस लिए, फॉर द स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस as it integrate the efforts of the individual's department and the specialist and harmonize the individual's goals with organizational's goal. ठीक है, चलो तो एक एक करके 3 पॉइंट है, एक एक करके समझते हैं एंड देन इस टॉपिक को फिनिश करते हैं. ग्रोथ इन द साइज. द नीड ऑफ द कोऑर्डिनेशंस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. आप जैसे जैसे अपने ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपको कोऑर्डिनेशंस की उतनी ज़्यादा ज़रूरत होगी, बिकॉज द इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देयर द मोर नंबर ऑफ द पर्सन वर्किंग, ईच इंडिविजुअल हैज़ हिज ओन नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव, सो देयर इज मोर नीड टू ब्रिंग टुगेदर और सिंक्रोनाइजिंग द एफर्ट्स ऑफ दीज एम्प्लॉयज़ टुवर्ड कॉमन गोल. अच्छा, अगर आपका स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो कोऑर्डिनेशन का शायद इंपॉर्टेंस उतना नहीं होगा, लेकिन अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे इंसान जो लोग होते हैं काम करते हैं, सबके अपने अपने नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं. सो यहाँ पर ना और ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाता है कोऑर्डिनेशंस को कि उनके एफर्ट्स को डायरेक्ट कर पाए कॉमन डायरेक्शंस में. ठीक है, employees may have their individual's objective for organizational efficiencies. It is important to harmonize the individual's goal and organization's goal through coordinations. Chalo, as an organizations grow, the number of the employees increase. Each employee has a different needs and objective. Coordinations becomes necessary to bring together and synchronize the efforts of all the employees toward the common organizational goal. Understood? The second point is functional differentiations. The functions of an organizations are divided into different departments. किसी भी organizations के functions को different department में divide किया गया है, जैसे कि finance department, production department, sales department, marketing department, ऐसे sections and divisions, and each department work in isolations by giving more importance to its objective. And ये जो departments होते हैं, sections होते हैं ना, ये independently काम करते हैं. ठीक है, and importance किसको देते हैं, अपने objectives को, कि finance का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो उसको अचीव करने में इंपॉर्टेंस देंगे. ठीक है, सो देयर इज मोर नीड टू रिलेट एंड ब्रिंग टुगेदर द एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट सेक्शंस एज दे आर द पार्ट ऑफ द वन ऑर्गेनाइजेशन ओनली. सो यहाँ पर और ज़रूरत पड़ जाता है कोऑर्डिनेशन को. द कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू मिनिमाइज द डिफरेंसेज अमंग डिपार्टमेंट्स. ओके, सो इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है ना कि वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस डिपार्टमेंट. कोई भी काम आपको वेरियस डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है, सच एज द प्रोडक्शंस, मार्केटिंग, फंक्शंस, फाइनेंस एट्सेट्रा. ऑल्दो ईच डिपार्टमेंट वर्क इंडिपेंडेंटली, दे आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट है. हाँ, ऐसा है कि वो इंडिपेंडेंटली काम करे लेकिन इंटरलिंक्ड है ना, interdependent. Coordination is required to integrate the departmental activities and minimize the conflicts among departments. Okay, and the last point is the specializations. In large and modern organization there is a high degree of the specializations, and the specialist or expert feel that they are the only qualified people and they always take the right decisions in the right directions. They are the number of the specialists working in the organizations. If all of them work in their own way, it will be result in the chaos. That in organizations में specialist को hire करना पड़ता है, expert को रखना पड़ता है, तो वो अगर अपने फील्ड में एक्सपर्ट है तो वो सोचते हैं कि हम ही को सब नॉलेज है, हम ही एकदम मतलब महान है. तो वैसे क्या होगा ना, तो वैसे तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते तो वो सब सोचने लगे तो अपने अपने तरीके से काम करने लगेंगे. सो वैसे ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव कभी अचीव हो ही नहीं पाएगा. So they are the number of the specialists working in the organizations. If all of them work in their own way, it will result in the chaos and the confusions. So there is need to coordinate the activity of all the specialists in a common directions and get the maximum benefit of this specialist. Again, that in large organizations employ many specialists and experts. If each specialist worked independently in his own way, it may result in the confusions and inefficiency. Coordinations ensure that an activities of all the specialists are directed towards a common objective, ensuring the maximum benefits. So here we end the importance of the coordinations or the needs of the coordinations. Okay, यहाँ पर एक बोला गया कि coordinations क्या है, synchronizing, bringing together, harmonizing, unification से keywords दिया गया. मेक श्योर कि आपको keywords प्रॉपर ध्यान रहे. यहाँ पर ये इस चैप्टर से रिलेटेड मेरा सारा कंसेप्ट हो गया है.
So the importance of the coordinations and the new need of the coordinations bring us to the end of the chapter 1. All the topics of this chapters are now completed. Now you should focus on the revisions and answer writing practice. That is the most important part of the study. In the next video, we will start chapter 2. So it is advisable to stay connected with the Shiksha Vriddhi for the further updates. If you have any doubts related to these chapters, you can ask in the comment sections. And if you found this video helpful, please like, share, subscribe to the channel. Thank you for watching. See you in the next class, and may you learn, grow and succeed in your life.